Ayurveda have the complete treatment, and we can plan the complete treatment of any of the disease exist in this world. In Sanskrit, Ayurveda means the science of life. Ayurveda was originated 5,000 years ago and is also known as the mother of all healing. Unfortunately, we have forgotten what our country has given us. But today we are going to talk more about Ayurveda and see what is it that it has to offer. Our today's guest, Dr. Amit Verma, is the CEO and founder of Vrixkalp Ayurveda. He is an MD in Ayurveda and a certified Ayurvedic doctor, a wellness and health coach, a trainer, and a TEDx speaker. He has more than 6 years of experience and has healed more than 50,000 patients, having chronic as well as acute diseases like PCOD, thyroid, diabetes, and much more. He's also an author of the book No More Arthritis Pain, Give the New Life to Your Joints. So without further ado, let's go and see what is it that Dr. Amit is going to share with us. I welcome you all again to Talkative. Let's meet our guest. Hi sir, how are you? I am fine. I am doing good, Shruti. How are you? I am great, sir. Now that you are an Ayurvedic expert, my first question is to you is, what is Ayurveda? Oh, great. So Ayurveda, people used to think that Ayurveda is something they can do at home, like they can use something as a home remedy, or they can use some nuskha by dadima, or they can practice whatever they want in their home, and they term it as a Ayurveda. ये Ayurveda है. But Ayurveda is something beyond the limits. Like Ayurveda is a science, and it is a science which is evolved 5,000 years ago with a lot of experience, lot of observation by our acharyas. So it was not just written something you can take and you will be fine, and something you do in your life you will be fine. It was a complete observation of series, the series of observation, like how you could do the things in your life, or how you can treat the disease in your life, or how you can be healthy in your life. If I want to summarize in the one term, like when we talk about the what is the aim, why Ayurveda is evolved as a science. Okay, so like in our life in day to day also we see different things are emerging in a society, but when there is a need of something, something is evolved in the society. In the same way, when there was something need 5,000 years ago, then the Ayurveda was evolved. So what was the aim of Ayurveda? Why Ayurveda was a need of society 5,000 years ago and till now? So the main aim of Ayurveda is swasthasya swasthya rakshanam aturasya vikar pashanam cha, means swasthya swasthya rakshanam means who are healthy, how to keep them healthy, means how to protect their health so they won't get disease easily. तो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, सिंपल सा मतलब है, समझने की कोशिश कीजिए. स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम मींस जो स्वस्थ है, जो हेल्दी है, उनको हेल्दी कैसे रखा जाए, मींस जो स्वस्थ है उनको उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करके कैसे रखा जाए, सो दे वोंट गेट डिसीज इजिली, मींस उसको रोग होने की संभावना कम से कम हो. Yes, I do agree. It's maybe not possible कि 100% protection from any other disease in the world, but Ayurveda concern was that if they will get the disease also, the risk factors, the morbidities will be very less if we concentrate on the health, how to keep them healthy. Second main part, they came on that aturasya vikar pashnunche, means after following these regimens, what we are telling after a lot of observations, our experience, still if a person get the disease, aturasya means diseased person, how to treat them. Vikar prashna means how to treat them. So Ayurveda is a complete science as a preventive or as a disease treatment aspect, where the both part has given equal importance, prevention and cure. So that is Ayurveda. So my next question is a follow-up question. Ayurveda को हम यूज कैसे कर सकते हैं अपनी लाइफ में? ओके, आयुर्वेदा को लाइफ में यूज कैसे करना है श्रुति? वेरी वेरी सिंपल. जो मैंने 2 एम बताए, वही 2 एम के लिए आयुर्वेद को लाइफ टाइम के लिए यूज करना है अपनी लाइफ के अंदर. अगर मैं आपको बात कहूँ, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, हर जगह हर घड़ी आप आयुर्वेद को यूज कर सकते हैं. आप एक चीज सोचिए, फॉर एग्जांपल आयुर्वेद कंसर्न सोचिए. आयुर्वेद ने बोला कि अगर आप अपने घर से बाहर जाते हैं तो यू शुड वियर योर स्लीपर्स एंड यू शुड कैरी ए अम्ब्रेला, यू शुड कैरी ए स्टिक विद यू. Can you see how much precise observation they had?
व्हाई अम्ब्रेला? बारिश का मौसम है, बारिश आ जाए, धूप है, धूप से कैसे बचना है, तो यू नीड अम्ब्रेला। आप जा रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको स्टिक चाहिए, कहीं पर हेल्प चाहिए, कहीं ऐसी जगह से जा रहे हैं जहाँ पे जंगली जानवर भी हो सकता है, कुछ जानवर हो सकता है, आपको स्टिक की हेल्प चाहिए। कहीं पर पानी भरा हुआ है, यू कैन चेक विद द स्टिक के वहां पे कैसा है। तो दैट मच प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन दे हैड टू कीप योर हेल्थ प्रोटेक्शन। ओके, तो आयुर्वेद को आप हर जगह यूज कर सकते हो। इवन दो आपको टीथ ब्रश करने हैं तो आपको किस तरह से करने चाहिए, पहले पहले ऊपर के दांत साफ करने चाहिए, बाद में नीचे के करने चाहिए, टंग क्लीनिंग क्यों करनी चाहिए, टंग क्लीनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, आपको खाने का स्वाद अच्छे से आता है, यू फील लॉट ऑफ टेस्ट। आपके खाने के अंदर 6 टाइप ऑफ टेस्ट इंक्लूड होनी चाहिए, बिकॉज इफ यू हैव ऑल 6 टाइप ऑफ टेस्ट then your every organ, every system will work efficiently, because हर ऑर्गन का एक अलग फंक्शन है, हर ऑर्गन को एक अलग टाइप का टेस्ट चाहिए। टंग जो आपकी टंग है, टंग के अलग अलग पार्ट में अलग अलग टेस्ट की, अलग अलग रस की अनुभूति होती है, मींस यू कैन फील अ डिफरेंट टेस्ट। आपको हम देखें कभी हम नमक चेक करना होता है तो हम आगे टिप पे लगा के चेक करते हैं, कभी पीछे लगा के चेक करते हैं, बिकॉज द परसेप्शन ऑफ दैट टेस्ट इज इन द फ्रंट पार्ट। अलग अलग टेस्ट की अलग अलग परसेप्शन है। तो इन छोटी छोटी चीजों को इतने प्रिसाइजली ऑब्जर्व किया गया कि आयुर्वेद को आप ऐसे यूज कर सकते हैं। सो आयुर्वेदा कैन बी यूज, आप एक घर में किचन में एक मिनी आयुर्वेद प्रेजेंट है, ठीक है, आप उसको अपनी हेल्थ के लिए यूज कर सकते हैं, डिफरेंट स्पाइसेस को अपनी हेल्थ के लिए यूज कर सकते हैं, और आयुर्वेद को यूज किया जा सकता है आपकी डिसीज को ठीक करने के लिए। बिकॉज आयुर्वेद के अंदर देयर आर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट ईच एंड एवरी डिसीज, हाउ द डिसीज हैपन, व्हाट आर द कॉजेज फॉर दैट, व्हाट आर द सिम्टम्स फॉर दैट, how it can be treated, what are the lifestyle changes you should do in your disease, and how you can evaluate कि disease है कैसी, इनको कैसी disease है, everything is completely explained in Ayurveda. So आयुर्वेदा को यूज किया सकता है आपकी लाइफ की दिनचर्या, मीन्स अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, अपना डाइट मेंटेन करने के लिए, डाइट का करेक्शन करने के लिए आयुर्वेद यूज किया जा सकता है, आपकी डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए आयुर्वेद को यूज किया जा सकता है। सो आयुर्वेदा इज नॉट जस्ट के कुछ स्पाइसेस मिक्स कर लिया, कुछ होम रेमेडी कर ली, दैट इज नॉट आयुर्वेदा। आयुर्वेदा इज कंप्लीट साइंस व्हिच कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट मैनर्स, इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। So by this I understand that Ayurveda is just not about the medication, it can be used as a process in your life, right? Yes, As a Ayurveda is a process process use of कर life, सकते हैं। your ahar, your vihar and your oshad, that is Ayurveda, means your food, your lifestyle, and if still needed, it's your medicine. Oh wow, that sounds really good. So sir, my next question is, आजकल जैसे बहुत सारी diseases हैं that people go through, be it COVID or a common cold or fever, तो आज की डेट में हम जितने भी diseases देख रहे हैं, उनमें हम आयुर्वेदा को कैसे यूज कर सकते हैं उन डिजीजेस को क्योर करने के लिए? श्रुति, मैंने जैसे अभी आपको बताया, आयुर्वेद के अंदर भी डिसीज का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है। लाइक जनरली क्या कहते हैं, आयुर्वेद प्रिंसिपल बेस्ड ऑन वात, पित्त एंड कफ। दीज थ्री थिंग्स आर द थ्री एंटिटीज व्हिच वी कॉल्ड एज दोषा। Dosha means simple thing, means these three entities are the pillars of body, means if they work in the proper manner, they are in the disciplined manner, all are equal in manner in the body, they take care of your body. If due to any of the factor, means any of the changes in your फैक्टर्स लाइक कोविड वायरस ले लीजिए, या कोई भी इन्फेक्शन ले लीजिए, ट्यूबरक्लोसिस ले लीजिए, डायबिटीज ले लीजिए, किसी वजह से आपकी बॉडी के 3 पिलर्स में जब डिस्टर्बेंस आती है तो आपकी बॉडी में डिसीज होती है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, सिंपल टर्म बात करें, पित्त को हम बोलते हैं आपकी बॉडी की अग्नि है, मींस इट इज अ फायर ऑफ योर बॉडी। मींस आपकी बॉडी में जितना भी मेटाबॉलिक प्रोसेस बॉडी के अंदर होता है वो इस पित्त के अंडरटेकिंग होता है। जब किसी भी ऐसे फैक्टर को आप कंज्यूम करेंगे, आपकी लाइफस्टाइल में कोई भी ऐसा फैक्टर ऐड ऑन होगा जिसकी वजह से इस पित्त में डिस्टर्बेंस आ रही है, तो आपको मेटाबॉलिक डिसीज होगी। अब ये पित्त किस लोकेशन पे डिस्टर्ब हुआ है, कहाँ के प्रॉब्लम आई है, कहाँ के हार्मोन डिस्टर्ब हुए हैं। आज बोलते हैं ना, पीसीओडी के लिए पीसीओडी के हार्मोन है, डायबिटीज के हार्मोन अलग से हैं, तो हर जगह अलग अलग हार्मोन्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स हैं। इन सभी हार्मोन्स का काम क्या है, ये सभी हार्मोन्स आपकी बॉडी के पित्त की तरह काम करते हैं, मींस मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं। तो कहाँ डिस्टर्बेंस आई है, आप वहां के मेटाबॉलिज्म को ठीक कर सकते हो, और प्रॉपर ट्रीटमेंट है। अब आयुर्वेद में ट्रीटमेंट करने के लिए स्पेशली जैसे मैंने बताया 3 मेथड्स होते हैं, आहार, विहार एंड औषध। तो दे वर्क ऑन देयर डाइट स्टाइल, दे वर्क ऑन देयर लाइफस्टाइल्स, एंड देन दे वर्क ऑन देयर मेडिसिन, कि किस तरह की मेडिसिन इस पेशेंट को देनी चाहिए, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, चाहे सर्वाइकल प्रॉब्लम हो, चाहे डिस्क की प्रॉब्लम हो, स्लिप डिस्क हो, सो मेनी डिसीज, मींस काउंट इज सो लॉन्ग। आप डिसीज का नाम लीजिए, उसका ट्रीटमेंट आयुर्वेद के अंदर है।
अब थर्ड पार्ट आता है औषध, जो हम बात करते हैं। इस औषध की जो कल्पना की जाती है, जो फॉर्मुलेशन डिसाइड की जाती है, दो एस्पेक्ट से की जाती है। वेदर हमें शमन करना है, शमन का मतलब होता है कि डिसीज इस लेवल तक बड़ी नहीं है कि उसको शरीर से बाहर उखाड़ के फेंकने की जरूरत है, कि शरीर में इतनी ज्यादा बड़ी हुई नहीं है, तो उसको वहां पैसिफाई किया जा सकता है, उसको धीरे धीरे दबा के खत्म किया जा सकता है। अब कई बार कोई डिसीज जो है दानव की तरह बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी के अंदर एग्जीक्यूट हो जाती है, कि बहुत स्ट्रॉन्ग, कैंसर लगा लीजिए, अर्थराइटिस का पेन लगा लीजिए, बहुत सीवियर पेन है रूमेटॉइड अर्थराइटिस का, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, बहुत सांस फूल रहा है, ब्लॉकेज हो रही है। तो ऐसे के अंदर जो है वी डू द शोधन चिकित्सा। शोधन मींस प्यूरिफिकेशन ऑफ योर बॉडी, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी। तो आयुर्वेद में चिकित्सा होती है, बोलते हैं पंचकर्म चिकित्सा। पंचकर्म बेसिकली 5 मेन प्रोसीजर्स which are used for detoxification, purification of your body. But under those 5 procedures, there are thousands of therapies, sub-therapies, which we use efficiently for the treatment of different disease. For example, किसी को osteoarthritis है, joints में पेन है, और उसको बोल दिया नी रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा, अब आपका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। In such cases, when disease is like a दानव, like it is like a demon, no option, your life is now on the surgery, no option, and option is a surgery. In such situation, we use a panchkarma therapies. Like for example, we do one Janu Basti. Janu means, Janu we call the knee joint in Ayurveda. Basti means we do some therapies locally on the knee joint. So we have seen that this Janu Basti have the power and tendency to stop your surgery. And I had treated in my life more than 10,000 patients of the arthritis, suffering from different arthritis, and still now years has been gone, they didn't need any surgery in their life. So that is the power of Panchkarma. So Ayurveda treatment specific to disease is Ahar, Vihar, and Oshad. Oshad Kalpana can be do with the Shaman Chikitsa or Shodhan Chikitsa. So that is the base of the Ayurveda. Ayurveda have the complete treatment, and we can plan the complete treatment of any of the disease exist in this world. So, sir, my next question is very much related. People have a lot of myths about Ayurveda. People think that we don't have a complete treatment of a disease in Ayurveda. लोगों के मन में इस तरह के myths होते हैं. So how true are that? तो श्रुति, इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा कि लोगों को ये चीज तो बड़ी क्लियर है कि आयुर्वेद में उनकी बीमारी का इलाज हो जाएगा, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उनकी लिमिटेशन है। उनको लगता है कि कुछ एक बीमारियां हैं, पेट की बीमारी है, कॉन्स्टिपेशन हो गई है, थोड़ा लीवर में गर्मी हो गई है, लीवर में प्रॉब्लम हो गई है। दीज आर सम ऑफ द डिसीज विच आयुर्वेदा कैन ट्रीट, but scenario is being changing completely and widely all over the world. The Ayurveda is accepted world widely now. तो लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, ठीक है, कि अब आयुर्वेद में ट्रीटमेंट है, मेरी डिसीज ट्रीटमेंट होता है। धीरे धीरे डॉक्टर्स भी अपना बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं टू ट्रीट द डिफिकल्ट डिसीज, कि नहीं आयुर्वेद से ठीक हो सकता है, इट्स नॉट एन इमरजेंसी, वी कैन हैंडल दिस। तो इन सब एफर्ट से सिनेरियो चेंज हो रहा है। बट इसके साथ मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा, जो बहुत कॉमन मिथ जो लोगों के दिमाग में जो फीड है, जो उनको रोकता है कि आयुर्वेद में ट्रीटमेंट लेने से। जब मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया था, तो आई वाज सर्चिंग ऑल दीज क्वेश्चंस, कि ऐसा हो क्यों रहा है, कि लोगों को प्रॉब्लम हो कहाँ रही है, ऐसा क्यों है, क्यों लोग आयुर्वेद में नहीं आना चाहते। इवन दे नो दैट कि उनके दिमाग में है कि आयुर्वेद के लिए साइड इफेक्ट नहीं है, आयुर्वेद मेरी बीमारी जड़ से निकाल देगी, फिर भी लोग क्यों नहीं आना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग, लोगों के दिमाग में एक मिथ है बहुत बड़ा कि आयुर्वेदा ट्रीटमेंट को बहुत लंबा टाइम चाहिए ट्रीट करने के लिए। यस, उनके दिमाग में रहता है कि आयुर्वेद ऐसे काम नहीं करेगा, अभी आप दवाई खाओगे, महीना खाओगे, 1.5 महीना 2 महीने में ऐसा आना दिखेगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आयुर्वेद की जब हम बुक्स पढ़ते हैं, तो उसमें ना सबसे पहले चैप्टर में एक लाइन लिखी हुई है कि अगर आपकी किसी भी डिसीज के अंदर डॉक्टर की बनाई हुई औषध कल्पना, मींस जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन आपका बनाया है, उससे अगर आपको 1 वीक में रिलीफ नहीं आ रहा है, तो देयर इज समथिंग मिसिंग, मे बी इन द डायग्नोसिस और मे बी इन द ट्रीटमेंट। सो सोचो, इतनी प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन थी कि विद इन वीक यू विल गेट द रिस्पॉन्स इन एवरीथिंग। और मेरी प्रैक्टिस एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक फीमेल प्रॉब्लम्स का ले लीजिए। फीमेल को प्रॉब्लम होती है कि मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प्स आते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब उनके पास एक ऑप्शन होता है कि मुझे पेन किलर खाना है, और 2-3 दिन बड़ा वेस्ट है। पेन किलर के बाद फिर बॉडी में जो डिटोरिएशन आती है वो अलग से आती है। बट आयुर्वेदा हैव सच पावरफुल मेडिसिन कि वो भी खाते ही विद इन 1 आवर में पेन खत्म हो जाता है, बट स्टिल नो एडवर्स इफेक्ट ऑन योर बॉडी। तो ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद स्लो काम करता है, इट इज ऑल अबाउट हाउ much precisely doctor is noticing your disease, how precisely he is making your pathology, and how precisely he is planning your treatment, उस पर डिपेंड करता है। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, लोगों के पास एक मिथ है कि आयुर्वेदिक दवाइयां गर्म होती हैं, ठीक है, कि ये खाने गर्मी करती हैं।
इट्स अगेन डिपेंड कि आपको डिसीज कैसी है। और इसमें कसूर क्या होता है कि इसमें जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं उनकी थोड़ी मिस्टेक है। लोगों को ये लगता है कि आयुर्वेद मेडिसिन जब जिसका मन करे जैसा अपनी चॉइस से किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से लेके किसी भी केमिस्ट स्टोर से ऑनलाइन खा सकता है, सबके लिए बना है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। अब फॉर एग्जाम्पल किसी को एसिडिटी है, अब मैं एसिडिटी पेशेंट को ये कहूँ कि तुम काली मिर्च खाओ, सौंठ खाओ, ये खाओ, कि एसिडिटी में आराम आएगा और ज्यादा बढ़ जाएगी। बट सेम एसिडिटी पेशेंट को अगर मैं कहूँ कि तुम मुनक्का खाओ, सौंफ का पानी पियो, तो उसको अच्छा लगेगा क्योंकि वो डाइजेशन हो जाएगा। तो आयुर्वेद में औषधि कल्पना भी सब चीजों को ध्यान में रखी की जाती है कि उसको डिसीज है कैसी, उसको जैसे जुकाम है किसी को, अब जुकाम में कफ निकालने के लिए हम क्या लेते हैं, शहद लेते हैं, अदरक लेते हैं, तुलसी लेते हैं, ऐसी दवाइयां जो कफ को काट सके। जुकाम के लिए ठंडी, अब मैं कहूँ किसी को जुकाम ठीक करना, आप आइसक्रीम खाइए, नहीं पॉसिबल, लेकिन उसको ऐसी चीज दूंगा जो उसकी ठंड को शांत कर सके तो उसको अच्छा लगे। तो अकॉर्डिंग टू डिसीज जो है मेडिसिन सिलेक्ट की जाती है। ऐसा नहीं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन गर्म होती है। गर्म दो कंडीशंस में आती हैं, एक तो कई बार इंसान की प्रकृति ऐसी होती है, किसी इंसान की बॉडी में नेचुरल हीट ज्यादा होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप कोई भी मेडिसिन खाते हैं लाइक, तो उसकी अलग अलग रिएक्शंस होती है बॉडी। तो यू हैव टू decide one thing today and you have to keep in your mind one thing today. Ayurveda medicines are not just simple herbs which can be by anyone from anywhere and consumed in their own manners. It should be planned in a system wise with the consultation of doctor. He will decide the dose for you and then definitely the myth will be over कि आयुर्वेद मेडिसिन गर्म होती है। तो ये सबसे बड़ा मिथ, ये भी मिथ होते हैं। एक तीसरा इंपॉर्टेंट मिथ ये होता है आयुर्वेद मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वो टॉक्सिक होती हैं, वो नुकसान करती हैं, ये करती हैं, और उससे साइड इफेक्ट। और एक दूसरा साथ में इसके प्रॉफिट अच्छा लोगों के दिमाग में मिथ है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट नहीं होते। मैं दोनों ही चीज को बोलना चाहूंगा, ऐसा नहीं बोलूंगा आयुर्वेदिक मेडिसिन साइड इफेक्ट नहीं होते। अगर आप एक अच्छा खाना, मान लो कि आप सबसे दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना जो आप बोलते हैं इससे हेल्दी कुछ हो नहीं सकता, इफ यू ईट दैट फूड इन द एक्सेस क्वांटिटी, व्हाट यू विल फील, गैस्ट्रिक इरिटेशन, गैस बन रहा है, पेट हैवी लग रहा है। इट मींस इवन दो दैट हेल्दीएस्ट फूड हैड द साइड इफेक्ट्स। सो in this world I don't think so anything exists without any side effect. Excess of love, side effect. Excess of anger, side effect. Everything have the side effect. But yes, Ayurveda medicines, if taken in a proper manner with a proper consultation with the doctor, because in Ayurveda also have some medicines there is a time limit कि ये medicine 2 महीने के बाद एक बार discontinue करनी चाहिए, उसके बाद खानी चाहिए दोबारा। Everything is mentioned in Ayurveda. If you take with this, all these regimens, with these healthy regimens, I assure you Ayurveda medicine have least or no adverse reaction in your body. But don't think that you can consume Ayurveda medicine randomly and you don't get any side effect. Yes, they have side effects. Other thing, what I want to tell people have that mindset कि Ayurveda medicine is toxic. Okay, if see आप जो मान लो फ्रूट चैट है या कोई भी एक चीज लगा लीजिए, आप पराठा लगा लीजिए, आप रोटी लगा लीजिए, अगर उस रोटी को अच्छे से बनाया गया, प्रॉपर प्रोपोर्शन आटे का लिया गया, पानी कितना, तो रोटी अच्छी नरम बनेगी, फूली हुई बनेगी, and you feel the pleasure of that chapati. But if the same chapati is not made with the correct procedures, कि कितना आटा कितना पानी चाहिए, you will feel that maybe roti will become hard, chapati will be hard or not tasty. Okay, in the same way, if medicine is made in the proper way, how it mentioned, purification, extraction is done in a proper way, and medicine is made with the complete procedures and the rules and regulations, no toxicity in the medicines. If you mix random other things and you use your own way, you don't purify it, you don't know that this medicine should be purified. For example, there are a lot of medicines, herbs available in the market, but people doesn't know that this should be purified, and they use it randomly and they get the toxicity. So toxicity is all about the how precisely or how much you are following the rule and regulation in making of the medicine. If it is proper, rules and regulation are followed correctly, there is no toxicity of the Ayurveda medicines. Got it, sir. Thank you so much. So this was my last question, but before we end this, there is one thing that I want to ask you. So what is that one message that you would want to give to the people before leaving? आयुर्वेद का मतलब कभी भी ये नहीं रहा कि आपको औषध का सेवन करना ही जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए। कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं कि स्वस्थ रहने का मतलब औषध सेवन होता है। जैसे मैंने बताया, आयुर्वेद का प्रयोजन ये था कि जो स्वस्थ है उनके स्वास्थ्य की रक्षा की जाए। तो जिस पद्धति का मेन मोटो ही यही रहा हो कि जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा की जाए,
और कैसे की जाए, देयर आर लॉट ऑफ डिस्क्रिप्शन। जैसे मैंने बताया, अपनी दिनचर्या, अपना लाइफस्टाइल आप बना सकते हैं कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए, योगा एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए, प्राणायाम क्यों करना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे सोना चाहिए। देयर इज ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन इन आयुर्वेदा अबाउट दैट। और जैसे मैं बोलता हूँ कि किचन इज द मिनी आयुर्वेदा, ठीक है, तो आप घर की अपनी किचन को आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके घर में जितनी स्पाइसेस है, आप उनकी टी पी सकते हैं। जैसे आज पानी में हल्दी थोड़ा डाल के उबाल के पानी पिया, तुलसी का चाय पिया, अजवाइन पिया, सौंफ का पिया, दालचीनी। तो these all spices contains all micro and macro nutrients, so आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कभी कमी नहीं आएगी। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, आयुर्वेदा हमेशा बोलता है कि अगर आयुर्वेद में एक बहुत अच्छी लाइन, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, एक बहुत अच्छी लाइन मुझे याद आई। आयुर्वेद में बोलते हैं, बोलते हैं अगर हित भोजन मीन्स अगर आप हित भोजन खा रहे हैं, इफ यू आर ईटिंग द हेल्दी फूड, देन यू डोंट हैव नीड ऑफ एनी मेडिसिन इन योर लाइफ। बट if you are not eating healthy food, means you are eating unhealthy food, then also you don't want any medicine in your life, because अगर आप unhealthy food खा के मेडिसिन खा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है जीने का, ठीक है। तो that is the importance of food is given in the Ayurveda. So अगर आप अगर अपना आहार भी अच्छे से आप मेंटेन करते हैं, it's not about कि healthy food, it's also about how you should consume. For example, हमारे दिमाग में मिथ डाल दिया गया सुबह उठ के ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करना चाहिए, राइट। मैं बोलता हूँ, मैं सुबह उठा हूँ, आई एम नॉट फीलिंग हंग्री, मेरा रात का खाना खाया हुआ डाइजेस्ट नहीं हो गया, आई कैन फील द हेवीनेस इन एब्डोमेन, आई शुड स्किप माय ब्रेकफास्ट। पुराना खाना जब तक डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो नया खाना नहीं खाना चाहिए। इट्स लाइक दैट, एक ग्राइंडर, मिक्सर ग्राइंडर है, उसमें ऑलरेडी जो चटनी बना रहे थे वो आधी पिसी हुई रखी, उसमें और डाल दिया सामान पीसने के लिए, नहीं बनेगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, हमें आदत है कि हम पहले जो खाना बनाए उसको भर पेट खाते हैं, फिर उसके बाद हमें जो चीज पसंद होती है उसके ऊपर से इसको ओवरलोड करते हैं। बट नेचुरली करना कैसे चाहिए, खाना खाने के लिए आपको एक इमेजिन करना चाहिए कि हमें स्टमक को 3 पोर्शन में डिवाइड करना चाहिए। एक पोर्शन में सॉलिड फूड, एक पोर्शन में लिक्विड एंड एक पोर्शन एयर के लिए खाली होना चाहिए। जैसे आप मिक्सर ग्राइंडर में करते हैं कुछ भी चीज को ग्राइंड करने के लिए, स्टमक इज द बेस्ट मिक्सर ग्राइंडर ऑफ दिस वर्ल्ड इन योर बॉडी। सो यू अप्लाई द सेम रूल देयर, तो आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। ज्यादा ओवरलोड करके उसमें से कुछ भी अच्छा नहीं निकलने से ज्यादा अच्छा है थोड़ा खा के उसका बेस्ट एक्सट्रैक्शन करो, तो आपकी बॉडी को काम आए। So these simple rules how Ayurveda can be used to be healthy and to keep yourself healthy. So do concentration of your diet and lifestyle, that is very important. Diet का मैंने आपको बताया, lifestyle का मैंने बताया कि कैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना क्यों जरूरी है, योग प्राणायाम क्यों जरूरी है, डेली वॉक करना क्यों जरूरी है, आपके पोस्चर्स कितने जरूरी है, बैठने के लिए उठने के लिए कैसे पोस्चर होना चाहिए, ये सब आयुर्वेदा में डिस्क्रिप्शन की है जिनको आप यूज कर सकते हैं efficiently to be healthy. Thank you so much, sir. That was very insightful and definitely something that people really needed to hear. So thank you so much for being with us. It was completely our pleasure to have you here. Thank you so much.